یہاں شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ خیبر پختونخوا میں آبی ریلوں نے قیامت خیز تباہی مچا دی۔ منڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹ گیا۔ بڑا آبی ریلا چند گھنٹوں میں 4 سدہ پہنچ جائے گا۔ اونچے درجے کا سیلاب آنے کا خدشہ، عوام کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ ریلے کی تیزی دیکھ کر خیالی پل پر بھگدڑ مچ گئی۔ پاک فوج کے دستے خیالی پل پر پہنچ گئے۔ سوات میں قیامت خیز تباہی، منہ زور آبی ریلے نے جنت نظیر وادی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ خوبصورت ہوٹل دیکھتے ہی دیکھتے زمیں بوس ہو گیا۔ کالام، بحرین اور منگورا میں کئی ہوٹل بہہ گئے۔ 4 مساجد بھی شہید۔ بحرین میں درال ڈیم ٹوٹ گیا، 8 افراد ڈوب گئے، 5 کی لاشیں نکالی گئی۔ نوشہرہ سے چند گھنٹوں میں 4 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ دریائے کابل کے کنارے آبادی کو فوری علاقہ خالی کرانے کے احکامات۔ لوور دیر میں سیلابی ریلا، نوجوانوں نے 4 افراد کو جان پر کھیل کر بچا لیا۔ ایک گھر کے 4 افراد ریلے میں گر گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اتوار کو کوہستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ ہم ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہمیں بچاؤ۔ اندرون سندھ سیلاب متاثرین کی دہائیاں۔ متاثرین پناہ کی تلاش میں محفوظ مقامات پر پہنچے تو امداد نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ کندکوٹ میں 7 سال کی بچی بھوک سے دم توڑ گئی۔ کرمپور میں چھت گرنے سے 5 سالہ بچہ جان بحق۔ متاثرین کا انڈس ہائی وے پر دھرنا۔ خیرپور میں بھی قومی شاہراہ پر احتجاج۔ کراچی پہنچنے والے متاثرین بھی عوامی نمائندوں پر برس پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سکھر میں ریلیف کیمپ کا دورہ۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ارب امداد کا اعلان۔ کہا یقین ہے یہ پل اور سڑکیں بنائیں گے، گھر گھر پیسہ پہنچائیں گے۔ یہ وقت سیاست کا نہیں خدمت کا ہے۔ منہدم گھروں کے متاثرین کے لیے معاوضے کا اعلان۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ آج سے ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے فی خاندان 25,000 روپے کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کا اعلان ہوا، میں اڑ گیا۔ سکھر میں اے ٹی ایم سے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے نہیں نکل رہے۔ سیلاب متاثرین پیسوں کے لیے پریشان۔ اے ٹی ایم مشین پر سوری کا نشان۔ زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی، ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ اس وقت ہم ریلیف اینڈ ریسکیو پر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عوام سے امداد کی اپیل کر دی۔ کہا خیموں اور راشن کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں میڈیا سندھ حکومت پر تنقید ضرور کرے مگر سیلاب زدگان کی حالت بھی سب کو دکھائیں تاکہ بیرونی امداد ملے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، سندھ کے حکمرانوں نے سسکتے بلکتے لوگوں کو بھی نہ بخشا۔ فریال تالپور کے شوہر رکن قومی اسمبلی منور تالپور نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی۔ متاثرین میں 50-50 روپے تقسیم کیے اور تالیوں کی گونج میں واپس چلے گئے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ کے بیٹے کو لوگوں نے روک کر کہا سائیں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ زیرک شاہ اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر نکل گئے۔ گمبٹ میں سیلاب متاثرین کا امدادی سامان پی پی ایم پی اے نعیم کھرل نے اپنے گودام میں چھپا دیا۔ اطلاع ملتے ہی لوگوں کا ہجوم پہنچ گیا۔ امداد بھی سیلاب کی نظر ہونے کا خدشہ۔ متاثرین کے پاس جانے کے بجائے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کے پیکٹس پھینکے۔ سینکڑوں متاثرین کے لیے چند ہی پیکٹس گرائے گئے، کچھ کو امداد ملی، بہت سے محروم رہے۔ ایک ماہ کے آذر کی جان بچائیں، آگے آئیں۔ حیدرآباد کے قاسم آباد اولڈ وحدت کالونی میں قائم برسات متاثرین کیمپ میں قیامت کے مناظر۔ ایک ماہ کے بچے سمیت بوڑھی خواتین اسکول کے کوریڈور میں زمین پر سونے پر مجبور۔ دوائیاں نہ کھانا، صرف ایک دیگ چاول پر گزارا۔ پانی ہے نہ ہی باتھ روم۔ اسکول انتظامیہ نے کمروں میں تالے لگا دیے۔ بچے بلک بلک کر رونے لگے۔ ARY کی خبر پر سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا نوٹس، کہا ڈی سی کو آذر سمیت متاثرین کی مدد کی ہدایت کر دی۔ کوئٹہ میں 36 گھنٹوں سے مسلسل بارش، نظام زندگی درہم برہم۔ کوئٹہ کا ملک بھر سے ہر قسم کا رابطہ منقطع۔
एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद, इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सर्विस भी मुतासर, गैस और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हरनाई में जर्दबंदी में सैलाबी पानी में 13 घंटे से फंसे शख्स को निकाला न जा सका। जाफराबाद में सैलाब का अलर्ट जारी, डेरा अल्लाह यार में दीवार गिरने से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जान बहक। बोलान में एक और गैस पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा, मस्तूम, कल्लाद, पशीन और दीगर इलाकों को गैस की फराहमी मुअत्तल। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं वफाकी हुकूमत से अपील है बलूचिस्तान के लोगों का साथ दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ को सिंध और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। पाक फौज के जनरल ऑफिसर्स की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देने का भी ऐलान। आर्मी चीफ सिंध और बलूचिस्तान में फौजी जवानों की जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा भी लेंगे। कौमी फ्लड रिलीफ इकदामात को कोऑर्डिनेट करने के लिए आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर भी कायम। वजारत दाखिला ने सूबों में पाक फौज के दस्तों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबों की रिक्विजिशन पर पाक फौज के दस्ते बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के कामों में सिविल इंतजामिया की मुआवनत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। इमरान खान और महमूद खान की डेरा इस्माइल खान आमद। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। डैम्स होते तो आज यही पानी नुकसान के बजाय खुशहाली का बायस होता। अपने दौरे हुकूमत में 10 डैम्स की तामीर प्लान का हिस्सा थे। पंजाब और केपी हुकूमतें मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करें। इमरान खान और वजीर आला महमूद खान का टांक में सैलाब मुतासरा कैंप का दौरा, बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये हुकूमत मुझे मुजरिम बना रही है, लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान कहते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है। जिमनी इलेक्शन हम जीत रहे हैं लेकिन मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। जब तक मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम नहीं मिलता, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इंतखाबात ही वाहिद हल है। कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से राजनपुर डूब गया। रुझान में हजारों घर तबाह हो गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम किया है। मुखैर हजरात भी आगे बढ़ें, मुसीबत में घिरे बहन भाइयों का सहारा बने। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को फराइज याद दिला दिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को याद दहानी का दूसरा खत भेज दिया। लिखा केपी हुकूमत ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए MOU पर दस्तखत किए थे। वफाकी वजीर खजाना ने वादे पूरे नहीं किए। केपी में जम अजला के लिए वफाकी बजट में कटौती वापस नहीं ली। 60 लाख कबाइलियों के लिए सेहत कार्ड की बहाली। केपी के लिए तनख्वाहों, पेंशन अदायगी के लिए 60 अरब की रकम में इजाफे पर भी कुछ न हुआ। तैमूर झगड़ा ने कहा मिफ्ता याद रखें केपी हुकूमत ने वफाक से सियासी इख्तलाफात के बावजूद MOU पर दस्तखत मुल्की मफाद में किए। बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। सिंध में ट्रेनों का पहिया जाम हो गया। कराची से लाहौर, पेशावर आने जाने वाली तमाम ट्रेनें 30 अगस्त तक के लिए बंद कर दी गईं। रेलवे हुकाम का कहना है नवाब शाह के करीब अप एंड डाउन ट्रैक मुकम्मल डूब गया है। पंजाब और केपी में ट्रेन की आमदोरफ्त जारी रहेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं मुसाफिरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मुसाफिर ट्रेनों का ऑपरेशन बंद किया गया। मोबाइल फोन टूटा हुआ लेकिन ताकत सुनामी से भी बड़ी। LBOD को कट लगाने के लिए आए एहलकारों को गांव वालों ने भगा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी प्रोटोकॉल में कुछ लोग LBOD को कट लगाने पहुंचे।
गांव वालों ने घेराव कर लिया और कहा आप हमें डबोने आए हैं। एक शख्स ने अपने टूटे मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की तो अफसरान भाग खड़े हुए। शर्जील मेमन ने अपनी फसल का पानी गांव की तरफ मोड़ दिया। एक देहाती ने वीडियो बनाकर सूबाई वजीर की कारस्तानी दिखा दी। डेरा इस्माइल खान में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, राना सना, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और शहबाज गिल के खिलाफ पर्चे कट गए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुनीर अहमद की मुद्दइयत में मुकदमात थाना छावनी में दर्ज हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद की कोर्ट ने पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आपके अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहिरा। कोरंगी में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज। शाह फैसल कॉलोनी में बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्सेस पर मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर टायर नजर आतिश। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को भी आग लगा दी। गुजरांवाला में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। गैपको ऑफिस के सामने धरने में कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शहरियों ने वफाकी वजीर तवानाई की तस्वीर पर जूते बरसाए। गैपको दफ्तर पर ताले डाल दिए। IMF को भी ये बता दिया था कि हम अपने उन गरीब लोगों को जो कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं हम प्रोटेक्ट करेंगे और हम इनसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लेने को से रोक देंगे। जो 200 से 300 यूनिट के सारिफ हैं उसके बारे में वो कमेटी गौर करेगी कि उनको किस तरह सहूलत दी जा सकती है। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। 56% सार्फिन पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पुराने बिल्स को भूल जाएं, आपके पास अब नए बिल आएंगे। तस्हीह शुदा बिल जल्द मौसूल होंगे। वजीर आजम ने 200 से 300 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को भी रिलीफ देने का कहा है। ताहम अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। कहा बिजली की कीमत में इजाफा करके अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा किया गया। हुकूमती इकदामात से अवाम मुतमईन नहीं। सिंध और पंजाब में सैलाब। सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। बलूचिस्तान से आने वाले प्याज और टमाटर गरीब की पहुंच से बाहर। दीगर सब्जियां भी दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रही हैं। हफ्तावार महंगाई की शरह भी 44.58% पर चली गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर 47 रुपये, प्याज 35 रुपये, आलू 4 रुपये और अंडे 7 रुपये 25 पैसे महंगे हुए। लहसुन, दाल माश और ब्रॉयलर मुर्गी भी महंगी। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 7 रुपये 10 पैसे महंगा हुआ। कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दे दिए कि एयरवे के निश्चय को बहाल किया जाए। तो सर इस हवाले से लोगों की आवाज़ आवाम तक आप तक कैसे पहुँचेगी? देखिए ये बात तो आप पैमरा से पूछें। हम जमहूरी जो हैं रवायत उसके हामी हैं। ARY न्यूज़ की नशरियात कई रोज से बंद हैं। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म का जवाब। कहा हम जमहूरी रवायत के हामी हैं। ये बात आप पेमरा से पूछें। जब माएँ बहनें बेटियां गिरफ्तार हुईं तो ये चैनल कहाँ थे? यहाँ सियासत की बातें मुनासिब नहीं। पैमरा ARY न्यूज़ की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। ARY न्यूज़ की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 7 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। शो कॉज नोटिस नशरियात बहाल न कराने और अदम पेशी पर जारी हुआ। ये जो ARY पर पाबंदी है ये अदलिया की तौहीन है। 4000 खानदानों का माशी कत्लेआम है। ARY ने कोई ऐसा कसूर नहीं किया था कि उनके नशात पर पाबंदी लगा दी गई। और सितम वाले सितम ये कि हक व सच की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश की जा रही है वो कभी कामयाब नहीं होंगी। ARY न्यूज़ की बंदिश खत्म करो। कराची तक खैबर अवाम हम आवाज़। कराची और पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। ARY न्यूज़ की फौरी बहाली का मुतालबा। कहा आज़ाद सहाफ़त पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत 4000 से ज़ायद मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे।
केबल पर ARY न्यूज की नशियात को फौरी खुलवाया जाए। PFUJ का पीर से इस्लामाबाद में पैमरा के बाहर मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। पाक बहरिया के दूसरे 054 अल्फा फ्रीगेट PNS तैमूर की बहरी बेड़े में शमूलियत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तैमूर को चीन के ताउन से तैयार किया गया। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा, PNS तैमूर जदीद हथियारों और सेंसर से लेस कसीरुल मकासद जहाज है जो समंदरी हुदूद और मफादात का दिफा मौसर बनाने में किरदार अदा करेगा। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो मुहिम जारी। रंगपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम की टीमें पहुंच गईं। पोलियो एहलकार असलम की दरिया उबूर करने की वीडियो वायरल हो गई। बरसगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। छह टीमें 13 मुकाबले, लेकिन चर्चे सिर्फ पाक भारत मुकाबले के। एशियन क्रिकेट का सुपर पावर बनने के लिए इवेंट का आगाज आज से होगा। दुबई में तैयारियां मुकम्मल। पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। कौमी टीम मुश्किल में। शाहीन आफरीदी के बाद फास्ट बॉलर वसीम जूनियर भी इवेंट से बाहर। वसीम की जगह हसन अली स्क्वाड में शामिल। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।